Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are well, fit and healthy and enjoying your teaching from home. So student, let take out your book, open page number 77 of your book. Take out your book and open page number 77 of your book and take one rough copy also, so that when I am explaining you and I am writing some important points on the board, you can note down from the boards. This help you in better understanding. Is it clear? So student, before starting, let's do recapitulation what we have done in our previous video. So students, see what is this word community means. What is community? A group of people living together in a particular area is called it a community. ठीक है, किसी एक एरिया में कुछ लोग मिलके जो रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज नोन एज ए कम्युनिटी. ठीक है, जैसे आप भी जहां रहते होगे आप लोग देखते होगे कि सारे कॉलोनीज के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं. ठीक है, देयर आर फ्यू हाउसेज, 40-50 हाउसेज होते हैं. दे एक एरिया में आए, एक डिफरेंट कॉलोनीज होती है, उसके बगल में कोई और डिफरेंट कॉलोनीज होती हैं. इस तरह होता है ना जहां हम लोग रहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिटी वाराणसी, तो वाराणसी में देयर आर मेनी प्लेसेस. ओके, देयर आर मेनी प्लेसेस in our city Varanasi. So we live in different area of our city, that is Varanasi. So a group of people living together in a particular area, that is known as a community. And yesterday we discussed what are neighbors. Okay, see student, for example, we all need a house because it give protect us. It is our shelter which protect us from rainwater, heat of the sun, cold, thieves, and from animals also. Okay student, so student, for example, you are living in a house with other members of your family. In the same manner, there are many houses around you where different families are living together. So what is the relation between you and that families? They all are your neighbors. They all are your neighbors. Okay, now after that student, when we move out from the our house, so that place is known as our neighborhood. That place is known as our neighborhood. Okay, so there are many important places in our surroundings also, and these surroundings are our neighborhood. Okay, so see, your life is easy and comfortable. How? When you get a good facilities in the area where you are living. ठीक है, आप जिस भी एरिया में रह रहे हो आपकी लाइफ इजी और कंफर्टेबल तभी हो सकती है जब उस एरिया में all types of facilities are available which make your life easy and comfortable. Okay, so these facilities are present in our community and these facilities are known as community services. जो क्लास 3 में हमने इसी चीज को क्या बोला था? नेबरहुड सर्विसेज. सो today we are discussing the community service. What are the services which are present in our community? Okay, and these are very necessary for us. ये हमारे लिए क्या बेटा? बहुत जरूरी है. ठीक है, इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. Is it clear? These facilities are very necessary for us and without this life is not possible. We need these facility to make our life easier and comfortable. Okay, now let's discuss what are the facilities present in our community where we are living.
Now student, let discuss. See student, most of our communities need some services to keep them clean and make the life of the people living there comfortable. Okay, so these services provide clean surroundings, pure drinking water. So what are the need? जैसे बेटा हम जहां पे रहते हैं, ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज known as a community. So how our life is good, what type of a facilities which we require, ठीक है, कौन कौन ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमें एकदम रिक्वायर्ड है, ठीक है. सो लेट डिस्कस ऑन द बोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, clean surroundings, clean surroundings. Next is pure drinking water. Next is pure drinking water. Roads. Health care facilities. Okay. See, I am just writing. See, we just discuss few services which are very necessary for us. Clean surroundings. You know, beta, we daily clean our house. Why we do that? So that you we are fit and healthy. Dirty places, if the house is not clean, then there are lot of germs, and due to this आप भी बीमार हो सकते हो, ठीक है. तो इसलिए हम लोग अपने हाउस को डेली क्लीन करते हैं ना, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ. देखो फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 चल रहा है, कितने प्रिकॉशंस दिए जाते हैं. व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, टेक आउट योर क्लोथ्स, take a wash all the time, after 30 minutes 1 hour, wash your hands. So we are following so many precautions at the time of COVID-19. Is it clear? So in the same manner student, or it is not possible that all the time we are in our house, ठीक है. So all, it is not possible that all the time in we are in our house, we go in our surroundings. हमें अपने surroundings में भी जाना होता है. जैसे as a kid आप क्या करने जाओगे? For example, you go to school and 6 to 7 hours you are in the school. Even you go with your parents to the market or park, these types of places you visit with your parents. So house, we clean our house, that is good thing, but our surrounding, it means the places which I am talking about, the neighborhood places where you are living, that places should be also neat and clean. Proper care should be taken that in the surroundings in which you are living, that surroundings are also clean. Is it clear? Then only you are fit and healthy. Is it clear? जैसे आप अपने घर में देखते होगे, आपकी मम्मी लोग पूरे घर को साफ करते हैं, ये करते हैं. स्कूल में भी देखते होगे, स्कूल में भी क्लासेस पूरी नीट एंड क्लीन होती हैं. इज इट क्लियर? प्रॉपर वाटर कूलर्स लगे हुए हैं स्कूल्स में. ऑल द टाइम यू सी
the class 4th employee, they are cleaning the verandas and classes. So that we why we do all these things, we do all these things to stay fit and healthy. ठीक है, अब देखो, वी शुड क्लीन आवर सराउंडिंग्स आल्सो. ओके, सराउंडिंग्स आर द एरिया, और आप कह सकते हो योर नेबरहुड प्लेसेस इन द एरिया विच यू आर लिविंग, जहां आप रहते हो. ठीक है, हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं, क्योंकि देखो मॉस्किटो, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज ए स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, तो व्हाट हैपन, लॉट ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है, मच्छर की क्या ब्रीडिंग प्लेस जो है क्या वाटर ही होती है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ वेयर यू आर लिविंग एंड नियर योर हाउस इफ देयर इज अ लॉट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, ठीक है, सो दैट आल्सो गिव बर्थ टू सो मेनी डिजीजेस. ठीक है, वो भी बहुत सी बीमारियों को क्या जन्म देगा. ठीक है, इट आल्सो गिव बर्थ टू सो मेनी डिजीजेस. सो एंड इफ देर इज अ लॉट ऑफ गार्बेज इन दियर सराउंडिंग, लोग कहीं भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं. ठीक है, कहीं भी कूड़ा फेंक दे रहे हैं, आप कहीं से भी जा रहे हो, उसमें कितने कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, मक्खियां, मॉस्किटोज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, दे सिट ऑन देम एंड दीज जर्म्स पार्टिकल दैट स्टिक्स ऑन देयर लेग्स, उनके छोटे छोटे पंख और लेग्स होते हैं, उसमें स्टिक्स होते हैं, ये क्या घर में आएंगे, एंड द फूड विच यू आर ईटिंग इफ दे सिट ऑन दैट फूड. आपने कभी भी देखा है, जल्दी हमें बाहर ओपन प्लेसेस में का खाना नहीं खाना चाहिए. ओपन प्लेसेस में लोग चाट खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, क्यों, वाई, बिकॉज ओपन प्लेस में तो डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत होते हैं, जर्म्स हैं, और ये जो आपकी हाउस फ्लाइज हैं, इफ दे सिट ऑन योर फूड then what happen, they pass germs in that healthy food, and when you eat that food डेफिनेटली आप भी सिक होगे. ठीक है, आप बीमार हो जाओगे. ठीक, तो हमें अपनी सराउंडिंग्स क्या नीट एंड क्लीन कर रखनी चाहिए. एंड इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली वन पर्सन, ये एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. many peoples are living in that area, everyone should do something to make the surrounding cleans, to make the surrounding clean. Is it clear? Next point है pure drinking water. This is also very necessary. Without this, if the water which is coming in your house, that water is not pure, then you will suffer from different types of diseases. ठीक है, अगर आपके घर में जो वाटर आ रहा है, जिस वाटर को आप ड्रिंक कर रहे हो, दैट वाटर इज नॉट प्योर, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी खाना बनाते हैं मम्मी लोग वेजिटेबल वॉश करती हैं, फ्रूट वॉश करते हैं, एंड यार इवन कुकिंग में भी वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है. वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली. इफ दैट वाटर इज नॉट प्योर, देन आल्सो वी विल सफर फ्रॉम मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. ठीक है, सो हमें हम ये तुम लोग के संग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे जहां अब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, जहां हम रहते हैं, तो ये कुछ ऐसी कंपल्सरी कंडीशंस हैं, ये ऐसी कॉमन चीजें हैं जो हर सोसाइटी में, हर एरिया के लोगों को चाहिए. मैंने अभी ये डिस्कस नहीं किया है, मतलब ये कुछ ऐसी कॉमन चीजें हैं जो वेयर यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द सिटी, तुम सिटी के किसी भी पार्ट में रह रहे हो, कुछ ऐसी कॉमन चीजें जो हर एरिया में चाहिए. ठीक है, जैसे सराउंडिंग्स क्लीन होनी चाहिए. ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्योर ड्रिंकिंग वाटर. नेक्स्ट, रोड फैसिलिटी होनी चाहिए. इज इट क्लियर? सी, रोड फैसिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज हाउ यू विल गो एंड समवेयर, कहाँ आप कैसे जाओगे. तो रोड शुड बी मेंटेन्ड, रोड भी मेंटेन्ड होने चाहिए. इज इट क्लियर? और क्योंकि आप लोग देखते हो कि विलेजेस में मैक्सिमम रोड्स क्या, अब तो खैर विलेजेस भी बहुत चेंज हो गए, नहीं तो मैक्सिमम रोड विलेजेस में मड वाले होते थे. इज इट क्लियर? सो एट द टाइम ऑफ ए मॉनसून सीजन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल. मॉनसून सीजन में व्हेन देयर इज लॉट ऑफ रेनफॉल, देन एट दैट टाइम if the roads are not good, then it is very difficult to travel from one place to another. Lot of accident also happen due to not a maintained road. अगर maintained road नहीं है, उससे भी बहुत से accident होते हैं. ठीक है,
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, वेयर सो मेनी पीपल्स आर लिविंग टुगेदर, सो यू नीड हॉस्पिटल्स, यू नीड हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, बिकॉज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज देन देयर शुड बी अ सम हॉस्पिटल सो दैट द डॉक्टर can see you and after that he will write a medicines for that diseases. Okay, another school, ठीक है, स्कूल इज आल्सो अ वेरी कंपल्सरी कंडीशन। ये सब मैंने कॉमन बातों को लिखा है बोर्ड पे, आप किसी भी जगह रहो, जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिटी वाराणसी, आप वाराणसी के बेटा किसी भी एरिया में रहो, ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट हैं जो हर एरिया के लोगों की कंपल्सरी कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे क्लीन सराउंडिंग चाहिए ही चाहिए, सराउंडिंग क्लींस नहीं होगी तो दे विल सफर फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा तो अगेन दे विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, रोड्स शुड बी मेंटेन्ड, ठीक है, रोड्स मेंटेन होने चाहिए, अदरवाइज इन स्पेशली इन द मानसून सीजन व्हेन इट इज लॉट ऑफ रेनफॉल इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और रोड अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपके एरिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बेटर होगी, ठीक है, क्योंकि जहां रोड अच्छे नहीं होते हैं वहां जल्दी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बेटर नहीं मिलती, बट इफ द रोड्स आर वेल मेंटेन देन देयर इज अ गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इन दैट एरिया। हेल्थ केयर फैसिलिटी, इट इज वन ऑफ द कंपल्सरी कंडीशन है कि कभी ना कभी होता है कि वी बिकम sick, so there should be someone who take care of us, so what happened at that time we go to the hospitals, तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो हर कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। स्कूल्स देखो, अब कम्युनिटी में बहुत सी फैमिली रहते हैं, ठीक है, सो दे हैव किड्स, तो दे दिस इज आल्सो ए कंपल्सरी कंडीशन, if there is no school then parents will send their children, where they will send their children, because in the school the kids go to school for the education, kids go to the school for education, so these are 4 5 common points which I have discussed that in is any type of a community, मतलब आप किसी भी पार्ट में रह रहे हो, ये कुछ ऐसे कॉमन फैसिलिटीज हैं जो हर किसी को चाहिए, ठीक है, अब हर किसी को चाहिए, जैसे क्लीन सराउंडिंग चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, रोड्स है, हेल्थ केयर है, स्कूल्स है। अगर आप विलेज एरिया की बात करो तो भी ये ऐसी कॉमन फैसिलिटी, भाई विलेज एरिया में भी लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां सराउंडिंग्स क्या क्लीन हो, ठीक है, दे आल्सो नीड प्योर ड्रिंकिंग वाटर, इज इट क्लियर, दे आल्सो नीड रोड्स, well maintained roads so they can easily travel from one place to another, and they also needs health facility, and they also need school for their children, so these are some of the common facilities which are necessary for all of us, is it clear? Ab now we will discuss student, okay, now we will discuss, after this student we will discuss what are the facilities, now we will discuss who give us, who provide these types of facilities to us, ठीक है, ये तो हमने एक कॉमन बात कर ली कि किस किस फैसिलिटी की हर किसी कम्युनिटी को जरूरत है, ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट आर दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय whom, अब कौन इस फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराते हैं, इज इट क्लियर? मेडिकल सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेस्ट डिस्पोजल, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी, बैंकिंग, ओके, आई राइट इट एंड देन वी विल डिस्कस। मेडिकल सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट
disposal, port, water supply, फिर security and banking. See, ठीक है. अब देखो स्टूडेंट, what are the name of the services which provide these facilities? तो health related facilities, this is seen by medical services. Okay, so it come under the category that is a medical services. Okay, if someone is sick or some accident, any type of a health related services is provided by a medical. Next, public transport. Okay, so where you are living, we move, we travel from one place to another. हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हैं ना बेटा, तो इसके लिए क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है. ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज देखो हो सकता है सबके पास अपने व्हीकल्स ना हो, सो दे यूज ऑटो रिक्शा, कार हायर करते हैं, ऑटो रिक्शा, कार है, बस है. सो these public transport, railways, these public transport provide all that facilities for traveling from one place to another. ठीक है, जैसे आप लोग अपने if you are traveling very less distance, so you can use your own vehicle also, or you can use auto rickshaw, car, or if you have to travel a long distance, so you can use bus services also, or by train you can also travel a long distance in a very comfortable manner. ठीक है, ट्रेन से भी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हो. ठीक है, और दूर जाना है तो यू कैन गो विद द शिप आल्सो, एंड इवन यू कैन यूज व्हाट टाइप ऑफ एरोप्लेन फैसिलिटीज इज आल्सो अवेलेबल. इज इट क्लियर? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, मेडिकल से रिलेटेड, वेस्ट डिस्पोजल. See, we are talking about the clean surroundings. ठीक है, every day there is a lot of rubbish comes out from the houses. बहुत ज्यादा कूड़ा करकट, हर घर से सफाई होती है तो निकलता है. ठीक है, तो there should be a proper disposal of the waste. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा, हर घर के लोग कूड़ा ऐसे ही फेंकने लगेंगे तो बहुत बड़े बड़े ढेर लग जाएंगे गार्बेज के आपके घर के आसपास. इज इट क्लियर? सो आप लोग शहर में देखते होंगे गाड़ियां आती हैं, R39 GTC में देखो एक बड़ा सा ट्रक आता है. इज इट क्लियर? एंड ऑल द पीपल्स put the garbage at one place, and with that truck it come and it collect all the garbage and it take from there. तो प्रॉपर उसका डिस्पोजल हो रहा है ना वेस्ट मटेरियल का. वाटर सप्लाई, सो वाटर सप्लाई, see these day we are getting the water from the पंप सप्लाई वाटर मिलता है. ठीक है, पंप से सप्लाई जो अंडरग्राउंड वाटर होता है. ठीक है, इवन 39 GTC में आप लोग ने देखा होगा वो बहुत बड़ी सी एक बहुत बड़ा सा टैंक है ना, जहां से वाटर सप्लाई होती है आप लोग को. देयर इज ए पंप आल्सो इन 39 GTC from where the clean water is supplied to all the quarters. Is it clear? तो इन द सेम मैनर इन डिफरेंट एरिया, अदर एरिया, 39 GTC की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वहां रहते हैं. ठीक है, आप लोग ने भी वहां वाटर पंप देखा होगा. ठीक है, उसी का वाटर सारे क्वार्टर्स में सप्लाई होता है. इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर इन डिफरेंट पार्ट, इन डिफरेंट एरिया ऑफ द सिटीज देयर आर डिफरेंट वाटर पंप्स टू सप्लाई द वाटर टू द डिफरेंट हाउसेस. ठीक है, इज इट क्लियर? एंड सिक्योरिटी पर्पज से, सिक्योरिटी पुलिस पर्सन, देयर इज अ पुलिस स्टेशन आल्सो इन देयर कम्युनिटी, सो दे सी द रूल्स एंड लॉज, ऑल दे मेंटेन द रूल एंड लॉ, दे मेंटेन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो लॉ मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? पुलिस पर्सन करते हैं. इस समय देखो कोरोना चल रहा है, lot of hard work is done by the policeman. ठीक है,
पूरे this time at the COVID-19 time lot of hard work is done by the policemen. ठीक है, पूरे आपके शहर में जो एक बेटर इन्वायरमेंट जो दे रहे हैं, सबको कंट्रोल में करके रखा है, लोगों को सब मास्क लगा के जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग चेकिंग इज देयर. तो हु इज डूइंग ऑल दिस ड्यूटी? All these duties are done by the policeman. Banking extra, for example, you can put your money saved in the bank. Is it clear? In the bank the money is saved, so you can also use a bank for keeping your money safe also. Even you can take a lockers in the bank to keep your precious things like जैसे आप कह सकते हो ऑर्नामेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको भी आप अगर चाहो तो बैंक में लॉकर लेके रख सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द फैसिलिटीज. ओके, एंड दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट एजेंसीज. These facilities are provided by different agencies. Now that we will discuss. Turn the page number, open page number 78. अब देखो, ये डिफरेंट सर्विसेज की हमने बात की, ठीक है. तो इवन यस्टरडे आल्सो इन माय वीडियो आई टोल्ड यू दैट ऑल दीज फैसिलिटीज, देखो हम एक छोटे से कम्युनिटी, एक एरिया को लेके चल रहे हैं. इस तरह हमारे सिटीज में बहुत से एरिया होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी शहर में चले जाओ, कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जहाँ कहीं भी आप चले जाओ वो आपको चाहिए ही चाहिए. जैसे क्लीन सराउंडिंग्स है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, रोड है, हेल्थ फैसिलिटी है. भाई स्कूल चाहिए चाहिए ना, बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस दैट दीज फैसिलिटीज और दीज सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू द पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट कम्युनिटीज. ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं उनको ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो देयर आर some of the services are provided by government also and some of the services are private also. ठीक है, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो प्राइवेट एजेंसियां भी प्रोवाइड करा रही हैं. इज इट क्लियर? अब देखो, दीज सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय वेरियस एजेंसीज. दीज एजेंसीज, और ये एजेंसीज प्राइवेट भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट भी हो सकती है. इज इट क्लियर? The private agency can be formed by the members of the communities or by private parties. What does it means? अब देखो, ठीक है, अभी यहां आ जाओ. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, स्कूल से चलते हैं, क्योंकि यू आर अ स्टडिंग इन अ स्कूल, तो ये एग्जांपल आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा. देखो बेटा, वेयर यू आर लिविंग देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स. वहां बहुत से स्कूल्स होंगे, ठीक है. सम ऑफ द स्कूल्स आर running by the government and there are many schools in your locality or in your surroundings or in your neighborhood. You will find that they are private schools. They are private schools. ठीक है, सो हमने स्कूल को सबसे पहले इसलिए लिया, मैंने कहा ये जो डिफरेंट सर्विसेज हैं इनको गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है और कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी प्रोवाइड करती हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक स्कूल का एग्जांपल लिया. In your surroundings or in your neighborhood places you will see there are lot of schools. तो उसमें आपको गवर्नमेंट स्कूल भी मिल जाएंगे. Is it clear? And even you get many private schools. इस समय तो बहुत से प्राइवेट स्कूल हो गए हैं. ठीक है, तो that is the reason जो सर्विसेज हमें फैसिलिटीज मिल रही हैं ये हमें गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है. These facilities are provided by the government also. Or these facilities or services are provided by a private agencies also. ओके, जैसे कि हमने स्कूल का डिस्कस किया, अभी हमने स्कूल का डिस्कस किया ना. मेडिकल सर्विस में भी आप वही के ले सकते हो. देयर आर मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आल्सो वेयर यू हैव टू पे वेरी लेस फीस. बट if you see in your surrounding there are lot of, these days you will see there are lot of private hospitals. So these service, what I want to explain you that कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, सर्विसेज हैं, ऐसा नहीं है
उनको सिर्फ गवर्नमेंट देखेगी। बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज भी हैं, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी टू अस। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।